ओम नमो नमः। ओम सहज शांति। धीरे 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 अपने आप को शांत कर लें। नेत्रों को बंद रखें। और अगर खुला रखे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा खुला रखें, जिसमें आपको न सामने का दृश्य दिखे न नीचे का, बस उतना ही थोड़ा सा खुला। आंखों को खुला रखने की यह अवस्था बहुत ही अच्छी अवस्था है। आंखें उनकी स्थिति विचलित जरूर हो सकती है, कभी थोड़ी खुली, कभी थोड़ी ज्यादा खुली, कभी बिल्कुल बंद हो गई। प्राकृतिक रूप से जो भी सहज भाव से हो रहा है उसको होने दें। Do not try to resist nature. Try to enter that state of silence where you can look at anything, at everything. Whatever is outside is not going to change the way you feel. It could be a green mountain outside you. You could be looking at it. A beautiful, green, tall mountain. Or you could be even looking at a snow-clad Himalayan peak. Or you could be looking at a green farm, lush greenery. Or you could be looking at a beautiful stream of clear water. Or you could be looking at the horizon with colorful birds, different species, each unique of its kind, flying by. Or you could be looking at children who are playing, shouting, screaming, singing, dancing, rolling, playing in their own
natural way. So beautiful, isn't it? Or you could also be looking at anything which is not that beautiful according to some people. Like a garbage truck. You could also be looking at it. You could be looking at different types of people, different types of things. There are so many things in nature. There is clean water also. There is dirty water also. Different types. You cannot change them. Don't try to change. Try to change the way you look at it. Try to change. Try to raise your awareness. You have to rise. You have to rise. You have to rise. You don't have to try to rise or raise other things. Convert a garbage truck into a truck of flowers. No, that is not possible. That is not so easy also. A garbage truck is also very important. A basket of flowers is also very important. Offering a flower in worship is done only at the beginning level. As you advance in your sadhana, in your worship, in your state, in your awareness, the flowers, you offer the flower in your mind. You don't have to pluck a flower from a tree for that purpose. The flower can be created in the mind also, and it can be offered. But it does not necessarily have to be like you have to visualize and create a flower, a 3D flower in your mind. No. A flower is just a feeling. In the mind, what a flower is in the physical realm, in the mental realm, the flower means the feeling, the bhav. प्रेम ही पुष्प बन जाता है। जब तक पूजा अर्चना एक मूल आयाम पे या शुरुआती दौरों में किया जाता है तो उसमें पुष्प अर्पित किए जाते हैं, फल फूल अर्पित किए जाते हैं, पुष्पों की अंजलि भी दी जाती है, उसे पुष्पांजलि कहते हैं। और ये अंजलि भी शुद्ध तन, शुद्ध मन, शुद्ध विचार, शुद्ध भाव और प्रेम भाव से देने चाहिए। अगर अंतर में श्रद्धा नहीं है
तो उपासना किसी भी प्रकार की संभव नहीं है। किसी भी प्रकार की उपासना के लिए श्रद्धा आवश्यक है, समर्पण आवश्यक है, आस्था विश्वास आवश्यक है। नहीं तो उपासना निरर्थक हो जाती है। It becomes meaningless. Worship without faith, without belief, without love, without the right bhava becomes meaningless, even if you're offering all the flowers and all the fruits, all the gold, all the jewels. It does not matter. But even if you offer one flower or one leaf or one petal of a flower, from your heart with 100% love and selflessness, just out of love, then it means something. Then it is a priceless offering. It could be anything. It could be a dry leaf. A dry leaf you don't have to pluck. It is just fallen. Take it, wash it in a little bit of water and offer it. Bhagwan accepts the prasadam of the poor. So beautifully illustrated when Sri Krishna accepts the offering of love of his most beloved Sudama, the great devotee. So if there is love, Bhagwan will accept the prasadam. Bhagwan will accept the bhog. Bhagwan will accept the offering. That state, that love, that belief, that connect has to happen inside you. If that connect you have established, if you're loving something, let's say if you're loving a particular thing inside you, love has to happen inside, right? It can't happen outside. If you're just in love with something without any reason, selfless, that is pure love, isn't it? In that state of love, smiling, whether it is the Vigraha of the Devi or anybody who's your Ishta, if you offer it. Even if you don't have anything to offer, but you have just love, offer your love. That is all. That will be all. That will be suffice. You won't be able to get up from your Vajrasana or your asana, whichever asana. Or even if you're standing with your hands in Anjali Mudra, offering your pranam, the salutation, the Bhagwan. You will be in the trance of that love. That emptiness which is there inside you. That emptiness which gives rise to love.
And then that love, and then the Bhagavan shows you. When you open your eyes and you go outside, you find everything beautiful, everything blissful. You see beauty in everything. You are blissful without reason. The sunset may be followed by the darkness of the night. In the night, there could be moon, there could be no moon. There could be full moon, there could be half moon, or maybe the moon will get covered by clouds. Irrespective of what is happening, you love just about everything. That is love, isn't it? That is called the pushpa, the flower of the mind. And you keep going deeper and deeper and deeper and deeper. So, at the first level, you offer flowers, fruits, with devotion, with faith. Out of love. Because you believe in it. That is why you're doing it, right? If you don't believe in it, why are you doing it? You must believe in something before doing it, right? If you don't believe in it, then it will never work for you. The magic will never happen. But if you believe in it, it will work. Who has to bring the belief? Will Bhagavan bring the belief in you? Bhagavan has already given you the guna, the attribute of belief. Bhagavan has already given you that. That is why you can believe in so many things. That is why you believe that you were born on so and so day, that this is your name. This is your father's name, this is your mother's name, this is the place where you were born, this is the hospital where you were born, this is the day where you were born, this is the time on which you were born. This is the place where you went to school. You believe even in the books that you studied at school, at college, at university. You believe in a lot of things. You believe that you are living on planet Earth, and that this planet is revolving around the sun around the solar system, around the Milky Way galaxy. That there are more planets in the solar system that are revolving around the sun, and that the moon is revolving around the Earth, your planet. You believe in these things, right? You believe in the 7-day concept, right? You believe in the 24-hour cycle, right? You believe in the monthly cycle. You believe in the annual cycle, right? Right? You believe in the cycle of the moon around the earth around the sun around the Milky Way galaxy, around the center of the Milky Way galaxy. You believe in these cycles, right? You believe in the cycle of the breath that is happening inside you, right? Isn't it? Can't you feel it? The inhalation is always followed by an exhalation. And if you observe carefully, there's a gap between inhalation and exhalation. And then there is also a gap between the exhalation and the next inhalation, new cycle. So that there are 4 steps in one breath cycle. And one breath cycle is followed by a new breath cycle, a new beginning. So you believe in that cycle also. You will believe in it if you observe it. Observe it. Observe it. Observe it. The more you will observe it, the more you will
get to know what is breath. The more you will get to know the magic that you have already been given, the magic of breath. There's a different sound in inhalation and there's a different sound in exhalation. You will also observe that sound. These are two different vibrations, two different sounds. दो अलग ध्वनियां हैं। एक ध्वनि जो श्वास लेते समय होती है, एक ध्वनि जो श्वास त्यागते समय, श्वास छोड़ते समय होती है। और जो कुंभक एवं बाह्य कुंभक की स्थिति होती है उसमें कोई ध्वनि नहीं होती। उसमें अगर आप बहुत भीतर जाओ तो शायद आपको कुछ मिलेगा, वो अलग है। परंतु इस प्रकार की ऑब्जर्वेशन से, अभ्यास से आप में क्या आता है? आप में कौन सा गुण विकसित होता है? स्थिरता का। आप शांत हो जाते हैं, आप स्थिर हो जाते हैं। आपके शरीर में, आपके तन में हलचल कम हो जाती है। इस अभ्यास का सीधा प्रभाव आपके अन्नमय कोश यानी आपके जड़ शरीर पर पड़ता है। बहुत ही सकारात्मक प्रभाव। अगर आपका ध्यान लगा हुआ है, चाहे वो आपकी श्वसा पर हो या कोई और ध्यान पद्धति में, अगर आप ध्यान में, अगर आप लगातार किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर इसी ऑब्जर्वेशन में तल्लीन हो गए, विलीन हो गए, खो गए, उसी में रमे हुए, तो एक समय ऐसा आता है कि आप स्वयं में, अगर आप इस ध्यान को लंबा खींच लेंगे तो आप स्वयं में और श्वास में कोई भिन्नता नहीं कर पाएंगे। श्वास को श्वास कहते हैं, यह तो एक शब्दावली है, तो नाम दिया गया है ब्रेथ। ऐसी कोई खिंची हुई लकीर नहीं है कि इसको श्वास ही कहना है। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, ब्रेथ भी कर सकते हैं, श्वास भी कर सकते हैं, सांस भी कर सकते हैं, और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। एक्स और वाई भी कर सकते हैं, यिन यांग भी कर सकते हैं, इंगला पिंगला भी कर सकते हैं, सूर्य चंद्र भी कर सकते हैं, गंगा जमुना भी कर सकते हैं। नहीं, अगर आप किसी भी ध्यान में या इस श्वास की ध्यान गहरे चले जाएं, तो आपकी श्वास बहुत बारीक हो जाए, और आप एक विचार शून्य अवस्था में प्रवेश कर जाइए।
अगर कभी भी ध्यान टूटे तो वापस ध्यान को लगाना पड़ता है और फिर से एक नया प्रारंभ होता है। फिर इस बार गाड़ी जल्दी पकड़ में आती है, समय कम लगता है। पहली बार समय ज्यादा लगता है। उसी क्रम में अगर ध्यान टूटे, सबका ध्यान नहीं टूटता है। जो नित्य करते हैं, जो हर रोज करते हैं, बार बार करते हैं, लंबे लंबे कार्य के लिए करते हैं, उनका ध्यान नहीं टूटता है। परंतु जो प्रारंभिक स्तर पर है, कभी कभी करते हैं या हर रोज भी करते हैं तो कम समय के लिए करते हैं, कुछ मिनटों के लिए करते हैं, उनका ध्यान टूटता है। लंबे ले जाओगे, ध्यान टूट जाएगा। कोई ना कोई विचार आ जाएगा, कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। गहरे जाओगे तो हो सकता है भय भी आ जाएगा, मोह खड़ा हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मोह होता है, प्राणों का मोह होता है, संसार का मोह होता है, माया का मोह होता है। एक तो हम हैं, एक तो अहम है, एक तो मैं हूं, एक तो आत्म तत्व है। वो भिन्न है। और एक जिससे वो जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो थोड़ी अंदर की ओर पूरी चेतना लग जाती है, लगने लगती है, धीरे धीरे गाढ़ी होती जाती है, मजबूत होती जाती है। बाह्यता से एक दूरी बनती जाती है। तो जो शुरुआत में ऐसा पहली बार जिनको अनुभव होता है या दूसरी बार होता है या प्रारंभिक बारों में जब अनुभव हो, प्रारंभिक अनुभव सब होते हैं, उसमें भय होता है, भय आ सकता है कि ये जो चीज है कहीं वो चीज से छूट नहीं जाएगी। इसको मोह कहते हैं। उसका मोह जिसके प्रेम पाश में आप बंधे हुए। कैसा प्रेम? कच्चा प्रेम। क्योंकि आप एक ऐसी चीज के मोह में पड़े हुए जो सदा के लिए नहीं रहने वाली, क्षण भंगुर है। मान लीजिए आप किसी सेल के, बॉडी में सेल्स होते हैं, किसी सेल के प्रेम में पड़ जाए। सेल कितनी देर ही रुकता है, कितनी देर जीवित रहेगा? सेल की लाइफ क्या होती है, उसकी आयु क्या होती है? बहुत छोटी। किसी ब्रेथ साइकिल के मोह में आप पड़ जाएंगे, उसकी आयु क्या होती है? बहुत छोटी। उसके मोह में तो पड़ ही नहीं सकते। उसी तरह से कोई एक चीज होती है, कोई वस्तु ही होती है हमारे जीवन में। कोई बैग हो गया या कोई कपड़ा हो गया, कोई मोबाइल फोन हो गया, कोई कैमरा हो गया। अब ऐसी चीजों से ज्यादा मोह लगा लो, वो तो कभी भी टूट जा सकता है। उस पर तो लिखा ही रहता है, कुछ चीजों के ऊपर तो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर लिखा ही रहता है, हैंडल विद केयर। ग्लास के आइटम्स पर लिखा रहता है हैंडल विद केयर। वो एक ना एक दिन टूटेगा ही। और ऐसे भी उसकी एक आयु होती है। हैंडल विद केयर लिखा हुआ है और
लोग मोह कर लेते हैं। चीनी मिट्टी की कोई किसी घड़े से आप मोह कर लो तो कभी भी टूट जा सकता है। तेज हवा का झोंका आएगा और वो अपने स्थान से गिर जाएगा या पलट जाएगा और टूट जाएगा। तो जब हम संसार से, सांसारिक चीजों से, सांसारिक सौंदर्य से अधिक मोह लगा लेते हैं तो वो मोह भय को जन्म देता है, उस चीज को खो देने का जिससे हम मोहित हैं। क्योंकि जैसे ही वो चीज, हमें इस चीज का सदा भय रहता है, जब वो चीज रहती भी है, इस चीज का सदा भय रहता है, मुझसे थोड़ा सा भी दूर होते हैं तो हमको भय रहता है कहीं वो इस चीज को कुछ हो न जाए। हमेशा आके सबसे पहले उसी चीज को देखते हैं जो कि उस चीज के निकट आते, वो ठीक तो है ना। पैसों का भी मोह होता है, सामान का भी मोह होता है, लेकिन इन सभी मोह से बहुत ऊपर और कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर आपके जीव अस्तित्व का मोह है, आपके शरीर का मोह है, आपके प्राण का मोह है। प्राण तो बहुत ही गहरी चीज है, उसे तो समझना पड़ेगा। हमें उस चीज का भय होता है जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं इसको कि ये अज्ञान से जन्मा हुआ भय होता है। और इसीलिए हम लोग आज इतनी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञान भय को जन्म देता है और ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। और जैसे ये अंधेरा दूर होता है तो भय भी दूर हो जाता है। अंधेरे से बहुत लोग डरते हैं, नहीं, दिन में नहीं डरते हैं, अंधेरे में ज्यादा लोग डरते हैं। दिन से शायद ही कोई लोग डरता हो, लेकिन अंधेरे से, रात से बहुत लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? आप जंगल में कब जाना पसंद करोगे, दिन में या रात में? दिन में नहीं। आप सड़क में भी कब टहलना पसंद करोगे, दिन में या रात में? दिन में। तो रात से लोगों को डर होता है, रात में सब अपने बिल में छुप जाते हैं। बस भूखे हिंसक पशु ही बाहर घूमते रहते हैं, और नहीं तो कुछ साधक होते हैं जिनकी कोई वेला होती है, मुहूर्त होता है, उस समय साधना बड़ी अच्छी लगती है। तो मध्य रात्रि, तो इस प्रकार की चीजें। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर इसमें क्या कहा जा रहा है कि अज्ञान जो है वो तिमिर का यानी अंधकार की तरह होती है, और इसलिए इससे भय को जन्म होता है। जो चीज नहीं है, जैसी जो स्थिति नहीं है, हमें लगता है वैसी स्थिति ना हो, यही अज्ञान है। तो ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य, और तिमिर जो है ये हमें अंधा बना देता है। अंधकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंधा बना देता है, दिखता नहीं है।
ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञान आंजन शलाकया। ज्ञान जो है अंजन लगाती है हमारे चक्षुओं पर, चक्षुरून मिलितं येन, यानी फिर से दृष्टि मिल जाती, फिर से दिखने लगता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जो ये सारा काम करता है हमारे आंखों पर ज्ञान का अंजन लगा करके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है और हमें फिर से एक नई चक्षु देता है, एक नई दृष्टि देता है, उसे गुरु कहा गया है। ज्ञान देने वाले को ही गुरु कहा गया है। गुरु ज्ञान प्रदाता होते हैं, ज्ञान देते हैं, अज्ञान दूर करते हैं। सिंपल सी बात है। तो ध्यान ज्ञान लाता है और गुरु ही बताते हैं ध्यान क्या होता है, ध्यान में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले तो बताते हैं कि भैया ध्यान करो, आसन लगा कर बैठो, सहज पलटी आसन में बैठो, सुखासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, जिस किसी आसन में बैठो। ये आसन उत्तम आसन माने जाते हैं, विशेष करके सिद्धासन और पद्मासन। परंतु अगर कोई दिक्कत है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, उसको सहज पलटी भी कहते हैं। इस तरह से आप बैठ जाइए। इन तीनों आसनों में से कोई एक आसन में बैठिए, बहुत ही सिंपल है। तीनों सिंपल आसन है, किसी का पद्मासन नहीं लगता है तो वो सिद्धासन में बैठ सकते हैं, वो पद्मासन से लेस कॉम्प्लिकेटेड है। किसी को पद्मासन ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है सिद्धासन से तो वो पद्मासन में बैठ सकते हैं। और जो इन दोनों में से किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते हैं वो बहुत ही आराम से, बड़े ही आराम से आप सुखासन में बैठ सकते हैं। एंड यू कैन yield द सेम बेनिफिट्स। कुछ बेनिफिट्स डिफरेंट होते हैं, वो फिजिकल बेनिफिट्स हैं, जैसे सिद्धासन के अपने फिजिकल बेनिफिट्स हैं। और ध्यान में भी सिद्धासन बहुत लाभ देता है। पद्मासन भी ध्यान करने के लिए बड़ा उत्तम आसन है, लेकिन आप सुखासन में भी ध्यान कर सकते हैं। और अगर आप जो भी जैसे बताया जा रहा है, जो ज्ञान दिया जाता है, उसको अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो और फिर उसका अभ्यास कर रहे हो और फिर उसको अनुभव कर पा रहे हो, और अनुभव तो धीरे धीरे होगा, तो अपने आप जो है यू विल एनीवेज yield the benefits, yield the results। आपको फल मिलते ही जाएंगे। सुखासन में भी साधना करके आपको सेम फल मिल जाएंगे। तो हमें ध्यान करना है। ध्यान में जैसे ही हम जाते हैं सब शांत हो जाता है, श्वास बारीक हो जाती है और फिर ऐसी स्थिति आती है कि मैं और श्वास इसमें भिन्नता भी नहीं रहती है, जिसके बारे में आंग्ल भाषा में कहा जा सकता है कि द मेडिटेटर एंड the object of meditation, they become one। यानी जो ध्याता था और जो ध्यान था और जो ध्येय था, वो तीनों एक हो जाते हैं। ये थोड़ी और आगे की स्थिति है, लेकिन उसके पहले जो स्थिति आएगी वो ये आएगी कि आपको इसमें कोई भिन्नता ही नहीं मिलेगा कि
आप में और ध्यान में ये मैं का जो बोध है कि अभी तक आप सोच रहे हो कि आप एक व्यक्ति हो और आप अपने श्वास पर ध्यान कर रहे हैं, मैं अपने श्वास पर ध्यान कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं तत्व भी है और श्वास तत्व भी है ना। मैं अपने श्वास को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं भी है, श्वास भी है और ऑब्जर्वेशन भी है, 3 चीजें हैं। लेकिन जैसे ही आप उस चीज की गहराई में उतरते हो तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन हट जाएगा कि मैं हूँ, श्वास हूँ, ऑब्जर्वेशन है। ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन की ऑब्जर्वेशन मैं अभी कर रहा हूँ, तो वो हट जाएगा। ऑब्जर्वेशन तो सबसे पहले हट जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लगोगे, आपके अंदर ऐसी कोई बात नहीं होगी कि मैं कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फिर तो आप बस उसको ऑब्जर्व करोगे ना। आप तो उसमें ऑब्जर्व, जब आप पानी पी रहे हो तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर ऐसा नहीं होता, तो आप जल का स्वाद लेते रहते हो, आप उसमें रम जाते हो। नहीं, भोजन खाते हो तो भोजन के अपने ईटिंग कर रहे हैं इसमें नहीं रहते हो आप तो उसको एंजॉय करने लगते हो। यू स्टार्ट एंजॉइंग ना, तो आदमी खो जाता है। नहीं, इसको बोलते हैं ना कि खो गया आदमी, खाना खाने में खो गया, पानी पीने में खो गया, जूस पीने में खो गया, है ना। ठीक है, प्रकृति के नज़ारे देखने में खो गया, है ना। इस प्रकार की चीज़ें तो कोई कलाकारी में खो जाता है, कोई कहीं खो जाता है। खोने के बहुत तरीके हैं, पर ये भी एक तरीका है, ये एक अलग प्रकार का तरीका है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो फिर 2 चीज़ें रह जाती है, आप और श्वास, मैं और श्वास। फिर मैं भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं कैसे रहेगा। ऑब्जर्वेशन ही अगर हो रहा है तो फिर मैं ये माइंड में कैसे प्ले होगा, क्योंकि इम्पैक्ट सीधे माइंड पे हो रहा है। माइंड से ही ये सारी चीज़ें आ रही, इतनी सारी वैरायटीज जो है वो माइंड ही आपके सामने रख रहा है। एक्सपीरियंस, एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है तो बहुत डिफरेंट होता है। और फिर श्वास है, और जैसे ही आप फिर श्वास ही रहते थे, तो श्वास में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, श्वास स्थिर नहीं, पूरी तरह से तो स्थिर नहीं। जब श्वास काफी अंदर भी घुस जाती है तो भी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन तो हो ही रहा है ना। तो एक साइकिल तो चल रहा है जो आपको टोटल वननेस नहीं होने देगा। वो आपके ध्यान को, अगर ऐसा कहें कि ध्यान बहुत, जो आंतरिक ध्यान है, इसको शुद्ध ध्यान कहते हैं, उसको वो भंग करते रहता है। ठीक है, तो श्वास सबसे पहले बारीक हो जाती है, तो जो विचलन है वो कम हो जाता है, लगभग गायब सा हो जाता है। और फिर जो है श्वास लेने और श्वास छोड़ने, ये 2 चीजें हैं, इनके बीच एक स्थिति होती है, एक स्थान होता है। इसे आप जो भी नाम दे दो, कुंभक कहो, बाह्य कुंभक को, जो भी नाम आप देना चाहें, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मगर वो जो स्थिति है ना, वो एक प्रकार का बंध ही आप कह दो, और उस बंध की स्थिति में कुछ क्रियाएं होती हैं। तो क्रिया भी पूर्ण रूप से ध्यान
अभी तक बना नहीं है। ये एकदम घोर ध्यान है। घोर ध्यान अभी नहीं लगा है जब तक क्रिया होता है। लेकिन और ये क्रियाएं कुछ अलग अलग स्थानों पे हो सकती हैं। हो सकता है आपके शरीर में हो सकता है आपके मस्तक में हो। लेकिन अभी तक आप काफी डीप चले गए हो ध्यान। ऐसी बात नहीं, थोड़ी दूरी आपने तय की है। बट these are called kriyas. They change you as a person. इसी को रीवायरिंग कहते हैं। कुछ लोग कर रहे हैं आजकल रीवायरिंग है। तो मुझे नहीं पता रीवायरिंग क्या होती है, बट हाँ, बदलाव तो परिवर्तन तो अवश्य आता है, परिवर्तन आ जाता है तो क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये भी एक क्रिया है। ठीक है, ये गहराई में होने वाली क्रिया है। ऐसे तो श्वास और प्रश्वास भी एक क्रिया है, और फिर श्वास एवं प्रश्वास को अनुभव करना भी एक क्रिया है। श्वास को पीना और प्रश्वास को त्यागना अच्छे से, जैसे होता है ना कि जैसे श्वास ले रहे हैं तो आपको ऐसा अनुभव होगा एक समय के बाद, अगर आप इसको अच्छे से कर पाओ तो इस ध्यान को, तो आपको ऐसा अनुभव होगा श्वास खींचते समय, यानी श्वास अंदर भरते समय, कि आप अमृत को पी रहे हैं, बिल्कुल अमृत के समान, और शिशिर के समान ठंडा होगा वो, और अमृत के समान वो अमृतमयी होता है। श्वास अमृतमयी होता है। ऐसा ही अनुभव होगा आपको अगर आप अपना ध्यान सही तरह से कर पा रहे हो श्वास प्रश्वास का। तो आपको जो श्वास आप अंदर भरते हो ना, वो अमृतमय ही है दरअसल। तो you will be able to experience it the way it is, and you won't be able to experience your breath the way it is as long as you don't face the breath, as long as you don't immerse yourself in the breath. तो श्वास जो है वो गंगा के समान है, गंगा और जमुना के समान है। इसमें आपको इन दोनों नदियों में आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। नहीं, गंगा में डुबकी लगाओगे तो कैसा लगेगा? अमृत के समान लगता है। ठीक है, आप गंगा के समीप कहीं भी चले जाओ, एक अलग ही ऊर्जा आपको मिलेगी। ये सत्य बात है। मैं उस गंगा की बात कर रहा हूँ जो इस नदी को पूरा भारतवर्ष पूजता है। गंगा माँ कहते हैं हम लोग, गंगा मैया कहते हैं। अगर आप उसके तट पर जाओगे, कहीं पर पूरे भारत में, तो जहाँ जहाँ गंगा माँ है, आप उसके तट पर जाओगे तो आपको एक अलग ऊर्जा का अनुभव होगा। वो माँ है। एक अलग ऊर्जा है। और घाट बने हुए रहते हैं, मंदिर होते हैं, घंटियों की आवाज आती है, साधु महात्मा संत दिखते हैं, नाव लगे रहते हैं, कर्मकांड होते रहता है, कहीं धुनी जलती रहती है। वातावरण कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लोग स्नान कर रहे होते हैं, पिलग्रिम्स रहते हैं। वातावरण तो कुछ ऐसा ही होता है कि मनुष्य जो शहर से आते हैं या कहीं और से गांव से भी आ रहे हैं, वो आते हैं और एकदम उनको लगता है कि बम, जैसे एक ऊर्जा ने उन्हें हिट कर दिया। As if some rocket has struck them. The moment you reach the bank of the Ganga, you feel as if a spiritual rocket has hit you in your life.
when you go there for the first time. It is very powerful. गंगा आपको शांत कर देती है। गंगा कोई साधारण जल के तो, ऐसे तो जल, सारे जल पवित्र है, जल ही पवित्र है। जल तो जीवनदायिनी है, महाऔषध है, जल महाऔषधम कहा जाता है। परंतु और सारे झरने, सारे ये शुद्ध ही होते हैं। जो भूईफोड़ झरने होते हैं उनका क्या ही कहना, वो तो अमृतमय है, उनको आप पियो। जो भूईफोड़ होते हैं, भूईफोड़ का मतलब जो भूमि फोड़ के जो स्प्रिंग्स निकलते हैं, भूमि को फोड़ के जल निकलते हैं, तो वहाँ से, जहाँ से फोड़ के निकल रहे हैं वहाँ से आप जल पियोगे तो वो धारा इतनी शुद्ध होती है जल, वो तो अमृतमय ही लगता है। और हिमालय में ऐसा बहुत आपको मिलेगा, और दूसरे भी जगहों में मिलता है, ऐसी बात नहीं। भूईफोड़ स्प्रिंग्स बहुत जगह आपको मिलेंगे, वो अमृतमय होते हैं, पूरी दुनिया में मिलते हैं। वो बहुत सीक्रेट होते हैं, और वो उनमें बहुत हीलिंग पावर्स होती है, और बहुत ही शानदार लगता है इसको पीने को, फ्रेश लगता है। होली वाटर है वो, सेक्रेड वाटर, प्योर वाटर, बट वो एक छोटे से स्थान पे होता है। गंगा इज ए ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, ठीक, एंड इट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग, और उसकी बहुत बड़ी टेरिटरी है। मतलब वो गंगोत्री के आगे, गौमुख से प्रारंभ होती हैं और गंगा सागर तक के आगे तक जाती हैं, गंगा सागर तक जाती हैं। तो द गंगा इज वेरी लॉन्ग रिवर, एंड इट फीड्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्टमक्स इन द वर्ल्ड. It is the river that feeds the maximum number of stomachs and quenches the thirst of maximum number of people on this planet. It is that river. So from that point of view also, Ganga is the river. Okay. And therefore it is not a river. Even if you look at it from that point of view, it is not a river, it's mother. But there is another aspect of Ganga, why it is called Ma, why it is called mother. Ma means mother. हम उन्हें माँ क्यों कहते हैं, मैया क्यों कहते हैं? उसका कारण है, जब आप वहाँ जाते हैं आप शुद्ध हो जाते हैं, सच बात है। पर आपको ग्रेस होना चाहिए, और ग्रेस होने के लिए आप में वो सीकिंग होनी चाहिए। आप में सीकिंग का अर्थ होता है आप में वो पिपासा होनी चाहिए, आप पिपासु होने चाहिए। अगर आप सत्य की खोज में हैं, ज्ञान की खोज में हैं, अगर आपके अंदर वो पिपासा है, तो माँ गंगा के तट पर, चाहे वो काशी हो या फिर हरिद्वार हो या फिर गंगोत्री हो या और भी कई स्थान, माँ गंगा आपको स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक्स लाइक द स्पिरिचुअल पावर इज ट्रेमेंडस। वो आपको एक, जो बिगिनर्स हैं उनको तो, अगर उनमें पिपासा है और वो बिगिनर्स हैं, उन्होंने अभी तक बहुत डीप में वो नहीं गए हैं, उनको तो वो स्ट्राइक कर देगा, वो तो लगेगा ये क्या है। ऐसा एक्सपीरियंस कुछ लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है एक्चुअली। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ हुआ, आई डोंट हैव अ हेड काउंट, बट मेरे साथ हुआ था जब बहुत बहुत वर्षों पहले गंगा के तट पर गया, एंड
I was struck by a spiritual rocket. I felt boom. I felt the boom of Ganga. And I became completely still. I stood absolutely still. I felt, where have I come? मुझे लगा अचानक से सब कुछ बदल ही गया, ये कौन से जगह में आ गया। मतलब इट चेंजेस द वे यू लुक एट थिंग्स, इट चेंजेस योर होल लाइफ, योर होल परसेप्शन, इट चेंजेस यू एज अ पर्सन। जो कंडीशनिंग आपकी होती है उसको तोड़ देती है। गंगा आपकी पूरी जो सोशल कंडीशनिंग एक ह्यूमन बीइंग की होती है उसको गंगा तोड़ के फेंक देती है। उसमें वो ताकत है, इसलिए उसको बहुत बहुत तरीकों से उसको चैन किया गया। गंगा में वो पावर है, इसलिए हम लोग माँ गंगा की आरती करते हैं। बहुत जगह आरतियाँ होती हैं, फेमस है माँ गंगा की आरती। बहुत पावर है, बहुत पावर। एंड माँ गंगा मेक्स यू स्टिल। आप आज भी चले जाओ किसी अच्छे घाट पर, गंगा के तट पर जो अच्छे घाट होते हैं जहाँ पर मंदिर भी होते हैं, घंटियों की आवाज़ ही आती रहती है, आप वहाँ पर घाट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाओ या गंगा जी के एकदम जल के पास जाकर बैठ जाओ और देखो, जल को देखो, स्थान को देखो, दूसरे तट को देखो, हॉराइजन को देखो, आपको गंगा जी ही दिखेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो बड़ी है। और तो वो आपको पूर्ण रूप से स्टिल कर देता है। कोई भी व्यक्ति होता है उसमें एक स्टिलनेस आती है। और अगर किसी में स्टिलनेस नहीं आ पा रही है तो शायद अभी उनका वो समय नहीं आया है, वो बहुत ज़्यादा मन चले हैं अभी। है तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग समय है, स्थान है, स्थिति, अलग अलग दुनिया में रहते हैं अलग अलग। लेकिन जो लोग वास्तव में गंगा आए हैं, जो वास्तव में जिन्होंने जिंदगी देखी है, समाज देखा है, दुनिया देखी है, अपने आप को देखा, उनमें इतना तो समझ में आ गया है कि ये सब क्या ही है। ये सब एक तमाशे की तरह, एक मदारी के खेल की तरह, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हम लोग आज भी मानव समाज को अगर देखें तो उछलते हुए बंदरों से ज्यादा हम कुछ भी नहीं। बस हमारे दिमाग में शायद कहीं एक क्लाउड बना हुआ है कि ह्यूमन सोसाइटी इज अ वेरी हाईली इवॉल्व सोसाइटी, टेक्निकली वेरी एडवांस सोसाइटी, तो वो हमने रॉकेट वगैरह बना लिया होंगे। लेकिन रॉकेट बनाने के बाद हमें उसका करना क्या है वो शायद हमें नहीं पता, उतने इवॉल्व हम नहीं है। हम आज भी यही सोच रहे हैं कि हमें कैसे कहीं जाना है, वहाँ से क्या उठा के लाना है, कौन सी ऐसी चीज़ वहाँ से चोरी करके लानी है, मतलब किसी और घर में जाके वहाँ से कुछ चोरी करके यहाँ हमारे घर में लाना है। हम आज भी वही सोच रहे हैं रॉकेट बना करके। सोच छोटी ही है, बड़ी नहीं है, चोरी ही करने की सोच है, चोर ही है सब, चोर से ज़्यादा कुछ भी नहीं।
और सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? सनातन धर्म तो हमें सिखाता है कि ये सारे जो ग्रह हैं इनके नाम पर तो दिवस ही पड़े हुए हैं। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है। ये तो साक्षात है। और अलग अलग दिन पर इनका प्रभाव पड़ता है। सीधा प्रभाव है। जो लोग ज्योतिष पढ़े हुए हैं, जिन लोगों ने शास्त्र को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, ज्योतिषी को पढ़ा है, उनको तो अच्छी तरह से पता होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए किसी अलग दिन इस विषय पर बात करेंगे। अलग अलग दिनों की महत्ता क्या, कैसे, उनके मंत्र भी बने हुए हैं। हम उनको पूजते हैं, हम उनसे अपना जुड़ाव बनाते, कनेक्टिविटी बना सकते हैं और उस दिन हम बेहतर बना सकते हैं उस तरह से। लेकिन जुड़ाव जो है वो अंतर से बनाया जाता है। अगर हम माँ गंगा के तट पर जाएंगे और हमारे अंदर प्रेम होगा, शुद्ध प्रेम, निष्पाप, उतना ही स्वच्छ जैसे कि माँ गंगा है, उतना ही स्वच्छ हमारी अंदर में भी वही स्वच्छता है। ऐसा नहीं है। आत्म तत्व अलग है और मनुष्य, कभी मनुष्य हो, कभी बंदर हो, जो भी है वो तो अलग चीज। एक स्वच्छता अंदर वो तो है ही। वो तो अद्भुत है। उसकी सुगंध ही अद्भुत है, उसका स्पर्श अद्भुत है। वहां जैसे ही जाते हैं तो वो तो बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है, पावन है, शुद्ध है, गंगा जी की तरह। और गंगा जी को देखते ही बस प्रेम होना पड़ता है और एक पुत्र के समान अथवा पुत्री के समान वो अपनी माँ को प्रणाम करता है। ये नहीं कि उसमें अपने पैर डाल करके उस पर लात चला रहा हो, खेल रहा हो उससे। गंगा का जल है, छींटा उठा उठा के एक दूसरे को मार रहे हैं या पांव से जल को मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। ये सब तो या तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। ये नहीं किया जाता। ये माँ ही नहीं है, ये गुरु भी है। ये पूरी तरह से स्टिल कर देते हैं। इनमें वो पावर है। मैं अनुभव से बता रहा हूं कि मैं कोई स्पेशल पर्सन तो था नहीं, पर मैं गया। कोई एक वर्ष था, बहुत साल पहले की बात है। मैं गया, आज से 15 साल पहले की बात है। मैं गया और बस बहू, गंगा जी ने वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर सकता। बहुत जगहों में गया तो गंगा जी ने वो कर दिया। तो चीजें वाकई स्पेशल होती हैं। गंगा जी स्पेशल है और मेरी ये मान्यता है कि वो माँ तो है ही, इसमें तो कोई तो राय नहीं, कोई संदेह नहीं। साथ में वो गुरु भी है और वो ट्रांसफॉर्म भी करती है। और इसीलिए साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, ये लोग सदा से सनातन धर्म जो अच्छे से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि वो लोग गंगा के तट पर जाते हैं और हमेशा गंगा जल रखा जाता है स्वच्छ करने के लिए। क्यों? कारण है।
किसी भी पूजा में, अर्चना में, उपासना में, साधना तक में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है शुद्धि के लिए। क्यों? मरने से पहले गंगा जल पिलाया जाता है मुंह में। क्यों? वो मोक्ष प्रदायी। और हमें से कई को लगता है कि ये सब तो बस एक फॉर्मेलिटी है, शायद कोई सुपरस्टिशन है, शायद अंधविश्वास है कि गंगा जल मोक्ष कैसे दे सकती है, गंगा जल क्या मुक्ति दे देगी। मरता हुआ आदमी, उसको कोई क्या ही मदद कर लेगा, वो तो मरने वाला है। तो गंगा जल कोई दवाई तो है नहीं। वैसे गंगा की जो वाटर है उसके बाद उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो चुकी है, ठीक है। और गंगा की पानी सड़ती नहीं, ये भी डिस्कवरी हो चुकी है। बट ये साइंटिफिक रिसर्च के आधार पे, मैं रिपोर्ट्स के आधार पे बता रहा हूँ। लेकिन और ये रिसर्च रिपोर्ट्स मैंने नहीं की हैं, ठीक है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के, कोई विदेशी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने की। लेकिन जो मरते हुए आदमी को गंगा जल पिलाया, क्यों पिलाया? कुछ तो होगा गंगा जल। क्या है? आप जाओ तट पे, उस भावना के साथ, उस स्थिति में जाओ जिसमें, जैसे कि साधक जाता है, एक साधक जो है वो जाता है, किस लिए जाता है? उसे सत्य चाहिए, उसे बोध चाहिए। कैसे मिले? गंगा के तट पर कैसे मिले? गंगा के तट पर उसे जाकर बस बैठ जाना, और जो भी उसको बताया गया है, जो भी दीक्षा मिली है, या जो भी उसे बताया गया है, विधि बताया गया, उसको उस विधि से वहाँ पर आसन लगा करके, बैठ करके, एक चटाई बिछानी है या एक आसनी बिछानी है, हो सके तो कुश की, और ठंड है तो शाल वगैरह ओढ़ लो, बैठ जाओ, या ब्लैंकेट ओढ़ लो, बैठ जाओ, चादर ओढ़ लो, बैठ जाओ। दिन में बैठे हो तो पीताम्बरी ओढ़ लो, बैठ जाओ। और ध्यान में लग जाओ, ध्यान करो, कुछ देर देखो। सूर्य को अर्घ्य भी देते हैं लोग गंगा जी से, रोज प्रातः काल, उसकी अपनी एक अलग महिमा। नक्षत्र मंत्र भी बोलते हैं सूर्य को अर्घ देते हुए गंगा जी से, इन सब का अलग महत्व है। लेकिन इन सब आचरण के साथ आपका आहार विहार कैसा है, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रातः काल में सूर्य को अर्घ दिया, थोड़ी देर बाद आपने मतलब एक नियम, 2 नियम पालन किया और 4 नियमों की धज्जियां उड़ा कर, ऐसे करने से नहीं हो सकता है। ऐसे करने से आपको लगातार जो है प्रोग्रेस दिख नहीं पाए, बहुत ज़्यादा विकृतियाँ आने लगेंगी, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। नशे से दूर होना चाहिए, नशीली पदार्थों के सेवन से दूर रहना चाहिए। चाय तक ठीक है, इससे आगे मत जाओ, कोई लाभ नहीं।
तामसिक वृत्तियां आ जाती हैं। मांसाहार से और नशीले पदार्थों के सेवन से तामसिक वृत्तियां जो है वो मनुष्य तामसिक हो जाता है। तो साधना कैसे हो पाए? गंगा जी तो शुद्ध कर रही हैं आपको सुबह। आपने जब भी शुद्धि ली उनसे जाकर के, सुबह में ली, शाम में ली, या रविवार को ली, या सोमवार को ली, या चंद्रमा से आपने शुद्धि मध्य रात्रि में ली। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रात में कोई नशीले पदार्थ का सेवन किया और फिर मध्य रात्रि में आप ध्यान करने बैठे चंद्रमा के नीचे, तो कुछ और ही शायद आपको अनुभव होगा, वो किसी और नशे का अनुभव है। वो नहीं करना चाहिए, या तो इस पार या उस पार। सभी नियमों के पालन होने चाहिए और नियमों का पालन संभव है खुद को थोड़ा सहज बनाने से। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन सबसे पहले तो नियमों को लाओ, आहार विहार को लाओ। सबसे पहले तो उन नियमों को लाओ। मांसाहार को त्यागो, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी तो नहीं लेकिन कई सारी चीज़ों को जो है उससे थोड़ा दूर जाना पड़ता है। बहुत सारी गंदी हरकतें लोग करते हैं, काम वासना से संबंधी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, उससे थोड़ा हटना पड़ता है। जो गृहस्थ की जिम्मेदारी है वो आप निभा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन, तो अपने जीवन का मजाक मत उड़ाइए। स्वयं पर एक नियंत्रण रखिए, ध्यान जो है सही जगह रखिए। बड़ा ही एक सिंपल सा लाइन है, ध्यान ईश्वर पर रखो या परमात्मा तत्व पर रखो। तो सब चीजों में तुम्हें परमात्मा तत्व दिखाई दे। फिर कोई चीज गलत या सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य, रज और तम तो हैं। तो अभी तुम तामसिक करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। और जहां तक शिव की बात है या महायोगियों की बात है, तो या योगी राज की बात, योगी राजों की बात है, तो वो लोग तो उनके लिए तो सिर्फ कुछ लोग, कुछ योगी ऐसे होते हैं जिनके लिए बस श्वास ही काफी है। ब्रेथ इज देयर फॉडर और ब्रेथ इज फूड फॉर देम। Some just eat, let's say, little bit of barley mixed with butter, ghee mixed with ghee and water. That's all. And some herbs are required as medicine. And some tea maybe. Tea is also herbal tea. तो ये एक बिगिनिंग लेवल है जो कई जगहों के मंक्स ये खाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सत्तू रखा है और सत्तू खा रहे हैं, सत्तू में पानी डाल के, नमक डाल के या मीठा डाल के, जो भी डाल के आप थोड़ा बहुत इसको खा रहे हैं।
साथ में आप अदरक, शहद, घी इत्यादि का भी प्रयोग, गुड़ इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ों से लाभ भी होता है। आप मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। आप ग्रेन्स भी खा सकते हैं, अन्न, जिससे अन्नमय कोश बना है। चावल, दाल, आटा, गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, मक्के का आटा, बेसन हो गया, आप कुछ भी खा सकते हैं, चने का मतलब, दाल खा सकते हैं, साग खा सकते हैं, तरह तरह के साग होते हैं। साग हुए, पत्ते हुए, पत्ता गोभी हो गया, है ना, फूल गोभी हो गया, लौकी बहुत अच्छा होता है, परवल बहुत अच्छा होता है, कोमड़ा बहुत अच्छा होता है, शलगम बहुत अच्छा होता है, कितनी सारी चीज़ें, कंदमूल बहुत अच्छे होते हैं, आलू भी खा सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें खा सकते हैं, गाजर होता है, चुकंदर होता है, बोधी होता है, बीन्स होते हैं, इतने सारे तो वैरायटीज ऑलरेडी है, इतने सारे फल हैं जो आप खा सकते हैं। जाड़े में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और फ्रूट्स भी खा सकते हैं, और तरह तरह के फ्रूट्स हैं। अब तो सेब है, कभी आम है, कभी सेब है, कभी अमरूद है, केला है, पपीता है, बेल है, मतलब अलग अलग सीजनल चीज़ें ही खानी चाहिए, ऑफ सीजन चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सस्ती भी पड़ती हैं, सुलभ भी होती हैं सहजता से, और तो इस तरह से। और जो बहुत उस लेवल के होते हैं जिनकी बात हमने की, महायोग, तो उनके लिए तो प्राण ही था। और फिर जो एकदम शिव है तो वो तो शून्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से दूर रहना।